Hello students, we are seeing 9th standard biology tissues. Okay, so in this topic we are studying tissues. हम क्या कर रहे हैं? हम tissues की स्टडी कर रहे हैं. ओके, टिश्यूज में हमारा फर्स्ट टॉपिक चालू है, दैट इज प्लांट टिश्यूज. हमें पता है प्लांट बॉडीज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यूज, है ना. मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, दीज आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट. वी हैव डिस्कस्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. Meristematic tissues means what? Tissues which are continuously growing or which are continuously dividing. This kind of tissues we call as meristematic tissues. Okay, now we are going to focus on permanent tissues. Okay, now the next topic we are going to see is permanent tissues. Permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज मीन्स ऐसे टिश्यूज जो पहले होते हैं, एक्चुअली ये मेरिस्टेमेटिक ही है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक लिमिट के बाद में अपने डिवाइड होने की एबिलिटी क्या कर देते हैं, इनकी ख़त्म हो जाती है. उसके बाद में दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज. ओके, सो व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज? परमानेंट टिश्यूज आर tissues that have lost the ability to divide. A tissue which has lost the ability to divide. Okay, a tissue that has lost the ability to divide and have attained a definite form and size. Sorry. Permanent tissues are tissues that have lost the ability to divide and have attained a definite form and size. Okay, these are called permanent tissues. They are actually derived मतलब made from. They are actually made or derived from which tissues? From meristematic tissues. They are actually derived from meristematic tissues. Okay, और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कन्वर्शन परमानेंट टिश्यूज में होता है, इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. यहाँ पे नोट करके लिख लो. परमानेंट टिश्यू अगर आपको किसी ने पूछा तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन नहीं लिखी तो भी चलेगी, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि क्या ए प्रोसेस बाय विच meristematic tissues take up a definite shape, size and function. A process by which meristematic tissues take up a definite shape, size and function and is converted into a permanent tissue is called differentiation. The process is called as differentiation. ध्यान में रखना. Okay, so what is differentiation? A process by which meristematic tissue take up a definite shape, size
and function and is converted into permanent tissue is called differentiation. The process is called as differentiation. Okay, now let us see some important characteristics of permanent tissues. Characteristics of permanent टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? पहला तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका यही है, कौन सा? द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू normally do not divide. Normally do not divide. ये टिश्यूज डिवाइड नहीं होते हैं. These tissues do not divide. Number 2, they may be thin walled. अभी depending on the function they may be thin walled or thick walled. अभी यहाँ पे देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो थे ना वो मतलब वो कंपलसरी कैसे थे? थिन वॉल्ड ही थे. अभी ये जो परमानेंट टिश्यूज है दे कैन बी आइदर थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड. ये थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं और थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं. जो थिन वॉल्ड टिश्यूज होते हैं वो जनरली लिविंग होते हैं और जो थिक वॉल्ड टिश्यूज होते हैं वो होते हैं डेड. ओके, so they can be living, they can be dead, they can be thin walled, they can be thick walled. Third, they are specialized to perform a particular function. कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो क्या होते हैं? डिजाइन होते हैं. And fourth is they have attained definite shape and size. उनका shape and size कैसे होता है? They have attained a definite shape and size. उनका शेप और साइज कैसे होता है? फिक्स होता है. ओके, सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज. व्हाट आर दे? नंबर 1, दे नॉर्मली डू नॉट डिवाइड. दे मे बी थिन वॉल्ड, दे मे बी थिक वॉल्ड. दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन एंड दे हैव अटेन्ड डेफिनाइट शेप एंड साइज. ओके, सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. अगर आपको किसी ने बोला कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आप क्या लिखोगे? डिफ्रेंशिएशन बिटवीन परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिखना. मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज. डिफरेंस क्या है देखो इन दोनों के बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू? नंबर 1, सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली. मेरिस्टेमेटिक्स के जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं. एंड दे, इस केस में सेल्स डू नॉट डिवाइड. ये तो पहला डिफरेंस है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, परमानेंट टिश्यूज के सेल्स डिवाइड होते हैं क्या? नहीं होते हैं. सेकेंडली, आपके जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्मॉल होता है. सेल इज स्मॉलर इन साइज. इट इज अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. और दे आर सिमेट्रिक. क्या बोलते हैं इसको? आइसोडायसिमेट्रिक. ओके, इसका मतलब मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिनको होते हैं ऐसे ये सेल्स होते हैं. ठीक है, इधर के केस में जाओगे तो सेल्स कैसे होंगे? लार्ज होंगे, डिफ्रेंशिएटेड होंगे
एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स होंगे। इनमें शेप्स ओवल होता है मैक्सिमम, और कुछ केस में कैसे होता है, पॉलीगोनल शेप होता है, बराबर है ना। थर्ड कंडीशन, दे आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सारे के सारे कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं। दिस सेल्स कैन बी थिन वॉल्ड, मतलब लिविंग हो सकते हैं। दे कैन बी थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड मतलब वो डेड हो सकते हैं। ओके, सो दिस सेल्स कैन बी लिविंग एज वेल एज डेड। यहाँ पे नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती। एंड इन दिस केस इंटरसेल्युलर स्पेस may present, may not present, may not, कुछ चीज़ों में बहुत कम, लेकिन ऑफन इंटरसेलुलर प्लेस जो है, स्पेस जो है, दो सेल्स के बीच की स्पेस जो है वो ऑफन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इज लेस प्रोमिनेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई जगहों पे तो होता भी नहीं है। 6, दे टेक पार्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, दे टेक पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये रिलेटेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिलेटेड विथ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो परमानेंट टिश्यूज है 6, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस, कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा। प्लांट में जो बाकी के प्रोसेसेस होते हैं ग्रोथ के अलावा, प्रोटेक्शन है, प्लांट को सपोर्ट देना है, वाटर, फूड, ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट करना है, स्टोरेज करना है फूड का, वाटर का, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो है वो परमानेंट टिश्यूज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन what permanent and meristematic tissues. Okay, now we will see permanent tissues. permanent tissues का हमने चार्ट इसके पहले देखा है। permanent tissues में आप किस किस कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। जो permanent tissues है they are divided into 2 कैटेगरीज, है ना। तो इसका पहला जो टाइप है दैट वी आर गोइंग टू से नाउ, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब देखो क्या है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मतलब ये है तो परमानेंट, लेकिन इसमें जितने भी सेल्स है वो सभी कैसे होंगे, सेम, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन इट, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल, हम इसको अभी परमानेंट बार बार नहीं बोलेंगे, हाँ। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। sorry, simple tissues are made up of only one kind of cell. Simple tissues are made up of only one kind of cell. ओके, ये इसकी वजह से उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। These cells are similar in structure, origin and
फंक्शन। ये सारे सेल्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और उनका फंक्शन भी कैसे होता है, एक ही फंक्शन सारे सेल्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज इट? क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो हमारे पास सिंपल टिश्यूज है उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कौन? कोलेनकाइमा, और थर्ड जो है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ओके। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, these are 3 types of simple tissues. Parenchyma, colenenchyma and sclerenchyma, these are 3 types of simple tissues. Okay, now we will see these 3 tissues one by one. तीनों हम क्या करेंगे, one by one देखेंगे। सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है प्लांट की बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस टिश्यूज, पैरेन्काइमा टिश्यूज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरेन्काइमा tissues are widely distributed in plant body. प्लांट बॉडी में सारी दूर पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इन कौन कौन से बॉडी पार्ट में मिलते हैं आपको? ये स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर। ओके, सारे बॉडी पार्ट्स में पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जो कॉर्टेक्स ऑफ रूट है, रूट का कवरिंग, रूट हेयर, उसके बाद में ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मतलब ये बेस टिश्यू होता है, जो उसका ट्रंक होता है ना प्लांट का, वो ट्रंक का जो सबसे बेसिक मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेवल पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यूज। उसके बाद में जो मेसोफिल ऑफ लीव्स है, लीव्स के मेसोफिल में, रूट के कॉर्टेक्स में, ग्राउंड टिश्यू में, स्टेम के और लीव्स के मेसोफिल नाम, ये जो है इनके अलग अलग पार्ट्स है। हाँ, किसके? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स है। तो इनके जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे रूट्स को हम अलग अलग इसमें सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लीव्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो हर पार्ट में पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट in most of the parts. Okay, what are the characteristic features? Now we are going to see what are characteristics. Features of parenchyma. खासियत क्या है पैरेन्काइमा की? So पहला, it is cells are isodiametric. आइसोडायमेट्रिक मतलब जिसको मल्टीपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, जिसको मल्टीपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक सेल्स। दैट इज दे आर इक्वली एक्सपांडेड इन ऑल साइड्स। सारे साइड्स में से इनका इक्वल एक्सपांशन होता है। मतलब शेप इसका कैसे होता है, सिमेट्रिक होता है। किसी भी साइड में देखो एक जगह डायरेक्शन में ज़्यादा एक्सपांड हुआ, एक में कम, ऐसा नहीं होता है। ओके, जो सेल्स है, कौन से सेल्स? पैरेन्काइमा सेल्स, दे आर आइसोडायमेट्रिक। नंबर 2 इज दे मे बी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल शेप। ओके, दे कैन बी ओवल और दूसरा कौन सा? राउंड, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। थर्ड, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, पैरेन्काइमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, दिख नहीं रहा है क्या? पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स से बने होते हैं। कौन? पैरेन्काइमा, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। फिफ्थ, पैरेन्काइमा जो है दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड एंड वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। पैरेन्काइमा सेल की वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनी हुई वॉल होती है। साइटोप्लाज्म कैसे होता है? डेंस, साइटोप्लाज्म डेंस एंड क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होता है और वैक्यूल जो है, सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता है। पैरेन्काइमा में सेंट्रल वैक्यूल, मतलब सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक कैविटी जो है उसके सेंटर में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, ये रहे हो गई फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में सिक्स, कितने लिखे हैं हमने? सॉरी, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू 7th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेन्काइमा. What is it? Cells are loosely packed. Cells are loosely packed with large intercellular spaces. सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कैसी होती है? ज़्यादा होती है। दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, मतलब दो सेल्स के बीच में गैप हो सकती है। किस केस में? किस केस में? पैरेन्काइमा के केस में। 8 नंबर, सम पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा सेल। सम पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोरेन्काइमा बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, उसके साथ साथ सम पैरेन्काइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज, एयर cavities. Some parenchyma have large air cavities. They are called aerenchyma. Aerenchyma. Okay. They provide buoyancy to aquatic प्लांट्स। जैसे एक्वेटिक प्लांट में हम कंसिडर करते हैं ना, लोटस वगैरह जैसे प्लांट, ये प्लांट्स वाटर पे फ्लोट होते हैं, बराबर है ना? इससे कुछ पार्ट्स वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं। क्यों फ्लोट होते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एरेनकाइमा। एरेनकाइमा नाम के टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? जो प्लांट में, जिसमें बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, और एयर कैविटीज प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? बायंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से प्लांट के पार्ट्स वाटर के ऊपर फ्लोट हो सके। ओके, सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, पैरेन्काइमा के टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। ओके, नाउ लेट अस सी द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? फंक्शन है नंबर 1, दे स्टोर एंड असिमिलेट फूड। असिमिलेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, यूज करने के लिए। फूड का स्टोरेज करना पैरेन्काइमा का फर्स्ट फंक्शन है। दूसरा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट,
मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ये जो है परमानेंट टिश्यू जिसमें सेल्यूलोज की वॉल प्रेजेंट होती है, इसके वजह से ये क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर इसका हार्ड बनता है। और ये हार्ड स्ट्रक्चर के वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे टिश्यूज मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट को प्रोवाइड करते ही हैं। ओके, दे हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज करने के लिए इनके बीच में एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो क्लोरेनकाइमा टाइप के पैरेनकाइमा टिश्यू है, इट क्या बोलते हैं हम उसको, प्रिपेयर फूड प्रिपेयर करना, ये भी इनका काम है। इट प्रिपेयर फूड इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा देन दे विल प्रिपेयर फूड। एंड फिफ्थ पार्ट है इट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पैरेनकाइमा में स्टोर होता है। कौन कौन सा वेस्ट, लाइक गम, क्रिस्टल, टैनिन, रेजिन। ये जो प्लांट का वेस्ट रेजिन ये जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये काय में स्टोर रहता है, इट इज स्टोर्ड इन पैरेनकाइमा टिश्यू। ओके, लेट अस सी द डायग्राम ऑफ पैरेनकाइमा। डायग्राम ड्रॉ करते समय एक चीज ध्यान में रखो, कौन सी, ये जो सेल है ये ओवल शेप की होनी चाहिए और बीच में गैप होनी चाहिए। ठीक है, हम इसकी सेल वॉल इंडिकेट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिकेट करेंगे। दो चीजें हम क्या करेंगे, इसके इंडिकेट करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेनकाइमा टिश्यू, पैरेनकाइमा। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज सेल, this is cell wall, this is intercellular space। ओके, इतनी चीजें दिखाई तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेनकाइमा टिश्यू। ओके, पैरेनकाइमा टिश्यू सिंपल टिश्यू में का पहला टिश्यू हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद में कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।